Welcome, dear student, to this lecture number 6 on Introduction Fundamentals of Electrical Engineering. In this lecture, we will see about the power in the alternating circuits. As we know that both voltage and current in alternating circuits is alternating in nature. Both we have seen their nature that they are sinusoidal in nature. Hence, the power is also alternating. And in AC circuits, we are more concerned with average power. It is also known as true power, real power, active power. Okay. And the true power or the average power also depends upon a factor that is known as power factor. This factor decides how much power is actually consumed in an AC. Okay. So we know that in an AC circuit, we have equations for voltage and current with a circuit that has only resistance. We have seen that both are sinusoidal and there is no phase difference between the two. Okay. So we can multiply both voltage and current to get the expression for power. Okay. So I multiply this V equal to Vm sine theta and I equal to Im sine theta to get this expression Vi and then Vm Im sine theta into sine theta becomes sine square theta. And using some trigonometry, you can simplify this expression. This and finally becomes. Okay. So when I take the average of this expression, okay, I will have only this value. I will obtain only this value when I take the average. However, the average of this term will vanish. So the first term is constant and its average does not change, while the second term is a term with a frequency 2 omega. You know that you have already written that you know that theta is omega t. Okay. So 2 theta becomes 2 omega t. So basically, what is the angular frequency or angular velocity? So this is 2. And when I take the average over a whole cycle, the average will come out to be. Hence, the average power is given by this expression, Pm Im by 2. You can write 2 in this form, root 2 into root. So what is Vm by root 2? It is by Vrms. And what is Im by root 2? It is Irms. So we simply write P average equal to Vrms, Irms, and we can also omit this notation and we can only write P equal to simply. Okay. Where this is average power in an AC circuit with only resistance. This is the RMS value of the supply voltage. This is the RMS value of the circuit current. Now let us see what is the graphical variation. So we have already seen the graphs of voltage. This one is the voltage and this one is the current. Okay. When you multiply these two waveforms, we have already seen in the form of trigonometry that the equation will be like this. Okay. And you when you form the and when you plot this equation, you will obtain this of power consumption. Okay. The average value that is Vrms into Irms will be somewhere here. This is the level of the. Next, we move to power in an AC circuit in an AC circuit with only inductance. We have already seen in the previous lecture that V is equal to Vm sin theta in an AC circuit with inductance and I current lags behind the voltage by an angle of 90 degree, and we have seen the equation that the equation was I equal to minus Im, and we know that theta is omega t. So again I multiply these two to obtain this equation and using some trigonometry manipulation
we can write the final expression for power like this. However, again, if I take the average of this waveform over a whole cycle, 0 to 360 or 0 to 2 pi, the average will come out to be C. Okay, this should be evident from the waveform. You can see on this slide that this is the waveform for voltage. Okay, and this one is the waveform for current. So when you multiply, say during this interval, say during 0 to 90, when you multiply during voltage is positive, you can see voltage is positive and current is negative, and the product of a positive quantity and a negative quantity is negative. So you are seeing that power is negative in this interval 0 to 90 degree. In 90 to 180, both voltage and current are positive, hence power is also positive. However, this is only half cycle. Okay, even if for the half cycle, if you take out the average, so this minus and this plus, this will cancel out. If you take the average over even for the half cycle, the average should come out to be 0. But the full cycle is for 0 to 360. फुल साइकिल कहाँ तक होती है, 360 डिग्री तक होती है, यानी 2 पाई रेडियन तक होती है. तो अगर हम पावर का इस ग्राफ का अगर हम एवरेज लेंगे पूरी साइकिल पर, तो हम पाएंगे कि उसका एवरेज जो है वो एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट में, यानी एक ऐसा एसी सर्किट जिसमें सिर्फ इंडक्टेंस लगी हुई है, कोई कोई एवरेज पावर कंज्यूम नहीं हो. ठीक है. इसी तरीके से अगर हम ग्राफ बनाएं वोल्टेज का और करंट का और पावर का फॉर ए कैपेसिटिव सर्किट, तो वहां पर भी ये पाया जाता है कि वहां पर भी एवरेज पावर जो होती है वो जीरो होती है. ऐसी ही वेव फॉर्म्स आप यहाँ पर देख सकते हैं. इस लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर मैं स्किप कर दे रहा हूँ. अब अगर लेकिन आपको ये मालूम है कि जनरली कोई भी जो सर्किट होता है वो जनरली हमेशा प्योर रेजिस्टेंस या प्योर इंडक्टेंस या प्योर कैपेसिटेंस नहीं होती सर्किट में हमारे पास. तो हमेशा जो होता है इन प्रैक्टिस जो लोड्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, उनका जो नेचर होता है वो जनरली आर एल टाइप का नेचर होता है, यानी रेजिस्टेंस भी होता है और इंडक्टेंस. तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि इंडक्टिव नेचर होता है या आरएल नेचर के लोड्स होते हैं या अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस. तो और इंडक्टिव सर्किट का ये नेचर होता है कि करंट जो है हमेशा वोल्टेज से पीछे रहे, लैग करेगा. ठीक है. वो डिपेंड करेगा इंडक्टेंस की वैल्यू पे. तो ये एंगल जो है फाई, ये वो एंगल है जिससे वो करंट की वेव फॉर्म वोल्टेज की वेव फॉर्म से लैग कर रही है. यहाँ मैं बना के दिखा दे रहा हूँ. जैसे मान लीजिए अगर ये वोल्टेज की वेव फॉर्म है, ठीक है, तो दूसरे कलर से बना के देखते हैं. करंट की वेव फॉर्म ऐसी हो सकती है. ठीक है, लाइक दिस. ठीक है, आप ये देख रहे हैं ये एग्जैक्टली 90 नहीं है, बट ये जितने ड्यूरेशन से या जितने डिफरेंस से करंट जो है लैग कर रहा है वोल्टेज से, वो एंगल जो है, ये एंगल हमारा ये फाई. ठीक है. तो अगर प्योरली इंडक्टेंस था तो फाई की वैल्यू हमने देखी थी प्योरली इंडक्टिव सर्किट में पाई बाई 2 आ रही. ठीक है. लेकिन जनरली फाई की वैल्यू 30 डिग्री, 20 डिग्री, इस तरीके से 45 डिग्री, इस तरीके से हो सकती है. ठीक है. तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई जनरल एसी सर्किट है जिसमें जो अप्लायंस हमने लगा रखा है वो आरएल नेचर का है. ठीक है. तो आरएल नेचर का है तो
फुल्ली यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं मिलेगा, आपको कुछ एंगल मिलेगा और हम उस एंगल को जनरली हम कह रहे हैं फाई, ठीक है। तो दिस इज द एंगल बाय विच द करंट वेव फॉर्म इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज, ठीक है। यानी आपको बताया था कि करंट पहले वोल्टेज की पीक आएगी या वोल्टेज का जीरो आएगा, उसके बाद करंट का, उसके फाई ड्यूरेशन गुजरने के बाद, ये फाई एंगल गुजरने के बाद करंट की वो पोजीशन आएगी जो वोल्टेज की, ठीक है। यानी ये अभी चीज आप लोग को बताई, मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ उसको, कि अगर ये वोल्टेज है और वोल्टेज का ये जीरो यहाँ पे आ रहा है ना, ये जीरो आ रहा है, तो फाई ड्यूरेशन फाई ड्यूरेशन गुजरने के बाद करंट का जीरो आएगा, ठीक है। एंड दिस ड्यूरेशन इज फाई। या अगर आप पीक टू पीक देखें तो भी ये एंगल हो गया आपका फाई, ठीक है। बहुत इन डेप्थ हम इस टाइम नहीं जा सकते हैं, वी आर लैगिंग बिहाइंड द शेड्यूल, ठीक है। बट आपको बस इतना मालूम होना चाहिए कि कोई जनरली जो प्रैक्टिकली अप्लायंसेस होते हैं उसमें करंट जो है लैग करता है वोल्टेज से बाय सम एंगल, ठीक है, और उस एंगल को हम फाई कह रहे हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो अब हम फिर से दोबारा से इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर को कैलकुलेट करने के लिए, और जब हमने कैलकुलेट किया तो हमने फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन लगाया, ठीक है। यहाँ पे इस प्रोडक्ट को हमने सम में, प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो हमने इस प्रोडक्ट को इस सम में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये डिफरेंस कह लीजिए, ये तो डिफरेंस है बेसिकली, है ना। तो दिस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस फाइव गेट्स कन्वर्टेड इंटू कॉस फाइव माइनस कॉस टू थीटा माइनस फाइव अपॉन टू, ठीक है। तो हम वो ट्रिग्नोमेट्री में नहीं जा रहे हैं, बस ये समझ रहे हैं कि दैट दिस कन्वर्ट्स इनटू दिस फॉर्म, ओके। एंड अगेन वी सेपरेट द टू टर्म्स, ओके। so this we have this term and we have another double frequency term। तो हमें मालूम है, अभी तक हम देखते आए कि जो डबल फ्रीक्वेंसी टर्म होती है उसका एवरेज क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज हम नेक्स्ट स्लाइड में कंटिन्यू कर रहे हैं कि जब हम एवरेज लेंगे इस एक्सप्रेशन का तो हमारे पास सेकंड वाली टर्म का एवरेज जीरो होगा और हमारे पास सिर्फ फर्स्ट टर्म रह जाएगी। एंड अगेन वी आर स्प्लिटिंग दिस टू इंटू रूट टू टू मेक दीज पीक वैल्यूज, टू कन्वर्ट दीज पीक वैल्यूज इनटू आर, क्योंकि हमने बताया है कि जब भी वोल्टेज और करंट की बात होती है तो हमेशा हम आरएमएस वैल्यूज के टर्म्स में बात करते हैं। तो वी हैव now converted this into RMS form and we have multiplied this factor, this is known as power factor, तो ये हमारे पास ट्रू पावर, एक्टिव पावर, रियल पावर, इसका या एवरेज पावर, ये सब चारों पी के ही नाम है। पी से हम डिनोट कर रहे हैं ट्रू पावर, एक्टिव पावर, रियल पावर, एवरेज पावर, ये चारों एक ही चीज को डिनोट करते हैं, वो क्वांटिटी है आपकी ये वाली पी, और इसका एक्सप्रेशन होता है वी आई कॉस फाई एंड यूनिट इज वॉट, ओके। और इसको फैक्टर को अगर हम डीसी सर्किट की बात करें, है ना, डीसी सर्किट की अगर हम बात करें तो अभी तक हम ये देखते आए हैं कि हम क्या लिखते थे, पी पी इक्वल टू वी आई, सिंपली डीसी सर्किट। लेकिन यहां पर, और डीसी सर्किट में क्योंकि फेज एंगल का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि वहां पे वोल्टेज की कुछ वेव फॉर्म है, करंट की कुछ वेव फॉर्म है, ठीक है। वहां तो कांस्टेंट वोल्टेज है, कांस्टेंट करंट है। यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है और ऑल्टरनेटिंग करंट है, और हमने ये देखा कि यहाँ पर लोड के नेचर की वजह से, अप्लायंस जैसा हम इलेक्ट्रिक सर्किट में, एसी सर्किट में लगा रहे हैं, उसकी वजह से एक फैक्टर और यहाँ पर जुड़ जाता है जिसको हम कह रहे हैं कॉस फाई, ठीक है। तो एक्चुअली तो हमें लगता यह है कि हम इतनी ही पावर डिलीवर कर रहे हैं, अगर हम एसी सर्किट की भी बात कर रहे हैं तो, वी आर सप्लाइंग पावर विच इज इक्वल टू वी आई,
बट एक्चुअली दैट डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर कि हाउ मच पावर इज गेटिंग एक्चुअली कंज्यूम। तो यानी असल में हो क्या रहा है कि इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होने के बाद ही हमें एक्चुअल पावर का मालूम चलता है कि कितनी एक्चुअल पावर कंज्यूम हो रही है। तो पावर फैक्टर क्या है? इट इज ए मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस इन यूटिलाइजिंग द अपेरेंट और टोटल पावर। अपेरेंट का मतलब ऐसा हमें लग रहा है, ऐसा अपेयर हो रहा है कि हम टोटल पावर जो सप्लाई कर रहे हैं वो वी आई है। ठीक है ना, इसको टोटल पावर भी कहते हैं, टोटल पावर यहाँ लिखा हुआ भी है नीचे, और अपेरेंट पावर भी कहते हैं और डिनोट करते हैं एस से। हमें लग तो रहा है कि हम एस भेज रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूं तो मैं आई कैन राइट दिस। हमें लग तो रहा है कि हम एस के बराबर पावर भेज रहे हैं वी इंटू आई, लेकिन एक्चुअल पावर कंजम्पशन कितना हो रहा है? वी इंटू आई इंटू कॉस। ठीक है, तो किस वजह से हो रहा है? वो इसी वजह से हो रहा है, लोड के नेचर की वजह से। और लोड का नेचर क्योंकि इंडक्टिव है, अभी आपको बताया कि आर एल लोड है। जनरली आर एल लोड इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लोड और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अप्लायंस, उनका जो सर्किट नेचर होता है वो आर एल टाइप का होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वोल्टेज से करंट कुछ अमाउंट से लैग करने लगता है। ठीक है, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज विद सम अमाउंट, एंड दैट अमाउंट, और इस लैग होने की वजह से, इस लैग होने की वजह से ये चीज पावर कंजम्पशन में रिफ्लेक्ट होती है इन टर्म्स ऑफ पावर फैक्टर। ठीक है, अब इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? हम एक एक तो हमने देख लिया, पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस फाई। एंड फाई क्या था? फाई वाज द फेज एंगल डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट वेवफॉर्म। दूसरा, एवरेज पावर डिवाइडेड बाय टोटल। तो आप देख लीजिए, अगर आप, हमने अभी एवरेज पावर का फॉर्मूला लिखा वी आई कॉस फाई, कॉस फाई। और टोटल पावर हम क्या कह रहे हैं? टोटल पावर हम कह रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम इतनी पावर सप्लाई कर रहे हैं, वी आई गेट्स कैंसल्ड एंड यू गेट। ठीक है, अब cos फाई की वैल्यू देख लीजिए डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स के लिए। रेजिस्टेंस जहां था, जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस था, आपने देखा था कि वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज एंगल डिफरेंस नहीं था। तो क्या कह सकते हैं हम? फाई की वैल्यू 0 एंड cos फाई की वैल्यू हो गई 1। इसको जनरली इसको कहा जाता है यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर, ठीक है। एल सर्किट में, यानी जिसमें इंडक्टेंस लगी हुई है, सिर्फ इंडक्टेंस लगी हुई है, वहां पर फेज डिफरेंस कितना होता है वोल्टेज और करंट के बीच में? 90 डिग्री का होता है, एंड cos 90 इज 0। लेकिन इंडक्टेंस में करंट लैग करता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है लैगिंग पावर फैक्टर। लैगिंग पावर फैक्टर मैं इरेज कर दे रहा हूं। लैगिंग, ठीक है। इसी तरीके से कैपेसिटिव सर्किट में भी फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री का, लेकिन कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज लैग करती है और करंट लीड करता है। तो वी टॉक इन टर्म्स ऑफ करंट एंड वी से दैट इट इज लीडिंग पावर फैक्टर। वैल्यू तो 0 है, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका सर्किट का नेचर क्या है। ठीक है, तो लीडिंग पावर फैक्टर इसको कहा जाएगा। करंट के टर्म्स में हम बात करें, इन जनरली, इन जनरली इसकी वैल्यू 0 से कम नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, और 1 से ज्यादा भी नहीं होती है। तो आपको मालूम है कि cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है। तो द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर लाइज बिटवीन 0 एंड 1। फाइनली हम इसकी जो है अब वेवफॉर्म्स अब देख लेते हैं, वेवफॉर्म्स इसकी किस तरीके की होती है। देखिए, ये वोल्टेज की वेवफॉर्म है, साइनोसॉइडल वोल्टेज है। ठीक है, साइनोसॉइडल ही करंट है।
एंड द डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है जितने अमाउंट से करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से, वो अमाउंट क्या है, फेज एंगल. And when you plot the expression for power, you will get this expression, you will get this curve, this. Okay. तो ये बात थी हमारी एसी सर्किट्स में पावर की. ठीक है. एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद थ्री फेज सिस्टम्स, एंड होपफुली दैट विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर दिस यूनिट. ओके. थैंक यू.